ویلکم بیک۔ شہرنامے کا باقاعدہ آغاز کریں گے اور سب سے پہلے خبر دیں گے آپ کو روہیلا والی میں پولیس کا سماج دشمن عناصر کے خلاف کارروائیوں کا سلسلہ جاری ہے۔ 11 جواری گرفتار کر کے داؤ پر لگی رقم برآمد کر لی۔ آگاہ کریں آپ کو SHO تھانہ روہیلا والی انسپیکٹر چودھری جاوید اختر کی نگرانی میں روہیلا والی پولیس کا سماج دشمن عناصر کے خلاف کارروائیوں کا سلسلہ جاری ہے۔ مخبر کی اطلاع پر ماڑیا روڈ پر واقع محمود وسیم کی دکان پر ریڈ کرتے ہوئے جوا کھیلتے ہوئے 11 جواری موقع سے گرفتار کر کے ان کے قبضے سے نقد رقم برآمد کرتے ہوئے مقدمہ درج کر کے ملزمان کو حوالات میں بند کر دیا۔ مہنگائی کے ستائے حیدرآباد کے شہریوں کو سستی اشیاء خورونوش کی فراہمی کے لیے ڈپٹی کمشنر حیدرآباد فواد غفار سومرو کی ہدایت پر لطیف آباد میں بچت بازار کا انعقاد کیا گیا۔ لہر غریب اور متوسط طبقے کو متاثر کر رہی ہے۔ ڈپٹی کمشنر حیدرآباد فواد غفار سومرو کی خصوصی ہدایت پر شہریوں کو ریلیف دینے کے لیے لطیف آباد میں واقع باغ مصطفیٰ گراؤنڈ میں بچت بازار لگایا گیا۔ بچت بازار میں شہریوں کو اشیاء خوردونوش رعایتی نرخوں پر فراہم کرنے کے لیے مختلف کمپنیوں اور تاجر حضرات نے اسٹال لگائے۔ بچت بازار میں شہریوں نے بڑی تعداد میں خریداری کی اور انتظامیہ کے اقدام کو سراہا۔ یہ بازار کا انعقاد کیا گیا ہے اور یہ کام تو بہت پہلے ہو جانا چاہیے تھا حیدرآباد میں، کیونکہ حیدرآباد میں اس ایکٹیویٹیز کوئی بھی نہیں ہے۔ کراچی میں تو بہت سارے بازار لگتے ہیں، لیکن آج اس اقدام کو میں نے دیکھا ہے اور لوگوں نے بھی سراہا ہے۔ اتنی کم قیمت میں جو بازار میں ان کو زیادہ اشیاء خوردونوش زیادہ قیمتوں پہ مل رہی ہے، یہاں پر ان کو کم از کم 20-25-30 ہزار کی فرق سے مل رہی ہیں اور عوام بہت خوش ہیں یہاں پر، اور میرے خیال سے ابھی چھوٹا ہے، اس کو اور بڑا کرنا چاہیے۔ اور اسسٹنٹ کمشنر لطیف آباد اور تاجر رہنماؤں نے بچت بازار کے حوالے سے میٹرو نیوز سے خصوصی گفتگو کرتے ہوئے کہا، انشاءاللہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ سب تاجر اتحاد نے تعاون کیا ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ 25 سال میں لطیف آباد میں پہلی بار بچت بازار لگا ہے، تو میری بھرپور کوشش رہی ہے تقریباً ایک ہفتے سے سب کو میں نے آن بورڈ لے کے میٹنگیں کر کے سب کو میں لے کے آیا ہوں اور سب نے اچھا تعاون کیا ہے۔ اس میں الحمدللہ کافی رعایت دی گئی ہے، یہ کم آمدنی والے لوگوں کے لیے لگایا گیا ہے۔ مثال کے طور پہ بیف کا گوشت بازار میں 550 کا ہے اور یہاں حیدرآباد تاجر اتحاد کی جانب سے 300 روپے کا دیا جا رہا ہے۔ اس میں ہم سبسڈی دے رہے ہیں غریبوں کو، اس لیے کہ یہ کاسٹ بھی نہیں ہے۔ اسی طرح یہ دودھ ہے، ریٹیلر ایسوسی ایشن کی جانب سے لگایا گیا ہے، 90 روپے میں دودھ دیا جا رہا ہے، جس میں نہ کوئی کریم نکلی ہے نہ کوئی ملائی نکلی ہے اور بہترین 1 نمبر دودھ یہاں پہ دے رہے ہیں۔ اسی طرح بیسن ہے، اجرک بیسن ہے، وہ بھی بہت کم ریٹوں پر دستیاب ہے۔ تو آپ کو میں یہی بتانا چاہوں گا کہ کم سے کم 20% سے 50% تک رعایت دی گئی ہے۔ یہ میں سلام پیش کرتا ہوں اپنے حیدرآباد کے تاجروں کو، جن کے ساتھ ہم نے یہ آئیڈیا شیئر کیا، اور DC صاحب اور MP جبار صاحب سے جب ہماری ایک میٹنگ ہوئی اور انہوں نے یہ اپنا خیال ظاہر کیا کہ یار لوگوں کو ریلیف دینا چاہیے کیونکہ اس وقت مہنگائی بہت زیادہ ہے، اور میں امید کرتا ہوں کہ آئندہ آنے والے دنوں میں اگر کووڈ-19 کا اگر پرابلم نہیں آتا ہے تو انشاءاللہ اس سے بھی بہتر، اس سے بھی زیادہ آئٹم، اس سے بھی زیادہ عوام کو ریلیف دے گا۔ شہریوں نے بچت بازار کو غریب دوست بازار قرار دیتے ہوئے اس امید کا اظہار کیا کہ بچت بازار کے انعقاد کا سلسلہ مستقبل میں بھی جاری رہے گا۔ کیمرامین رضوان زئی کے ساتھ آصف زئی، میٹرو نیوز حیدرآباد۔ اور یہاں آپ کو بتائیں موسم سرما کی آمد کے ساتھ ہی شہریوں نے لنڈا بازاروں کا رخ کر لیا ہے۔ مزید احوال اس رپورٹ میں۔ سردیوں کا موسم شروع ہوتے ہی لاہوریوں نے لنڈا بازار کا رخ کر لیا۔ مہنگائی سے تنگ عوام نے جوتی اور کپڑے کی خریداری کے لیے لنڈا بازار کا رخ تو کیا، مگر لنڈا بازار میں بھی آ کر عوام کا کہنا ہے کہ مہنگائی عروج پر ہے، جبکہ دکانداروں کا کہنا ہے کہ کچھ مہنگائی نہیں، بازار سے لنڈا بازار میں مال سستا ہے۔ جی بالکل، گاہک تو سٹارٹنگ اس کا شروع ہوگا کیونکہ ابھی سردی کا موسم ہے، سب نے لینے یہاں پہ سستا چیز مل جاتے برانڈوں کے حساب سے۔ اگر میں نے یہ ایک جوگو لیا ہوا ہے یہ بازار سے، اگر ابر تو ہے نہیں پاکستان میں، اگر ہو کہ باٹا کی دکان پر ہو، سروس کی دکان پر ہو، وہ یہ 20,000 کے بھی نہ دیں، جو اس نے ادھر میں نے 400 کے لیا۔
इधर जो ना ये अमेरिकन मेरियन का जो ना इनको जो ना ट्राउजर मिले 300-400 रुपए में मिले, अगर 600-700 सिलाई मिला गया और उसका मटेरियल भी पाकिस्तानी हो नाकिस हो तो उसी लंडे वाला बेहतर है। हाँ महंगाई है, डॉलर शरीफ 160 में है, सही है, और इनका इंजन डॉलर है और डॉलर खला में है, जाहिर है महंगाई तो होगा। सर्दी की आमद है, लाहौरियों ने महंगाई की वजह से लुंडा बाजार का रुख कर लिया, लेकिन शहरियों का कहना यह है कि लुंडा बाजार में भी महंगाई अरूज पर है। कैमरामैन रेहान के साथ नदीम खान, मेट्रो वन न्यूज़, लाहौर। करोड़ पक्का में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जानिब से वर्कर कन्वेंशन, जिसमें साबिक वज़ीर आज़म सैयद यूसुफ रज़ा गिलानी, साबिक गवर्नर सैयद अहमद मखदूम समेत जनूबी पंजाब भर से ओहदेदारान ने शिरकत की। ज़िले सदर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी लोधरा इमदादुल्लाह अब्बासी ने कन्वेंशन से खिताब किया। तमाम मेहमानों को कन्वेंशन में शिरकत पर खुशामदीद कहा गया। इस मौके पर साबिक वज़ीर आज़म सैयद यूसुफ रज़ा गिलानी का कहना था कि 30 नवंबर को मुल्तान में यौम तासीस के सिलसिले में कन्वेंशन मुनक़्क़िद किया गया है। कायदीन तमाम डिस्ट्रिक्ट में जाकर वर्कर्स को दावत दे रहे हैं। 30 नवंबर के यौम तासीस की बुनियाद जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने रखी थी। यौम तासीस भरपूर तरीके से मनाएंगे। खबर देंगे आपको चिन्यूट से, जहां पर चिन्यूट थाना सिटी के इलाके में 7 लड़कों ने 14 साल बच्चे को ज़्यादती का निशाना बना डाला। पुलिस ने वाक़ई में मुलव्विस 6 मुल्ज़िमान को गिरफ्तार कर लिया। आगाह करें आपको, चिन्यूट थाना सिटी के इलाके में 7 लड़कों ने 14 साल बच्चे को ज़्यादती का निशाना बना डाला। पुलिस ने उस्मान के भाई की मुद्दत में थाना सिटी में मुकदमा दर्ज किया। थाना सिटी पुलिस ने वाक़ई में मुलव्विस 6 मुल्ज़िमान को गिरफ्तार कर लिया। DPO बिलाल जफर का कहना है कि इंसाफ की फराहमी को हर सूरत यकीनी बनाया जाएगा और मुल्ज़िमान को फरार वाक़ई सज़ा दी जाएगी। और आपको बताते चलें कि शुजाबाद रेलवे स्टेशन पर मालगाड़ी हादसे से बाल बाल बच गई। महकमा रेलवे के मुताबिक बोगियों का प्रेशर पाइप फटने की वजह से मालगाड़ी की बोगियां अलग हो गई थीं। मालगाड़ी मुल्तान से कराची जा रही थी। मुल्तान से कराची जाने वाली गाड़ी हादसे से बाल बाल बच गई। मालगाड़ी शुजाबाद रेलवे स्टेशन पहुंची कि अचानक प्रेशर पाइप फटने से मालगाड़ी की बोगियां अलग हो गईं। मालगाड़ी की बोगियां अलग होने से रेलवे इंतजामिया की जानिब से शुजाबाद रेलवे स्टेशन पर ट्रेनों की रवानी मुअत्तल कर दी गई और रेलवे फाटक भी बंद कर दिए गए, जिसके बायस गुजरने वाले मुसाफिरों को शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ा। मजीद खबरें भी शहरनामे का हिस्सा बनाएंगे, लेकिन एक ब्रेक के बाद हमारे साथ रहिए। और यहाँ खबर शामिल करेंगे तोसा शरीफ से, जहाँ पर थाना सिटी के इलाके में पुलिस मुकाबले के हवाले से ASP मलिर रोहिल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। मजीद उनका क्या कहना था, जानते हैं इस रिपोर्ट में। तोसा के इलाके में पुलिस मुकाबला के हवाले से ASP मीर रोहल खान ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान उन्होंने मीडिया नुमाइंदगान को ब्रीफिंग दी। उनका कहना था, पुलिस के ऊपर फायरिंग हो रही है। जैसे ही फायरिंग रुक गई तो पुलिस ने जब सर्च ऑपरेशन किया तो वहाँ पे 2 मुलजिम जख्मी हालत में मिले और 2 मुलजिम भाग चुके थे। उन पे मुकदमा दर्ज कर दिया गया है, दहशतगर्दी का एक्ट भी उसमें हमने लगा दिया है। उन्होंने मजीद कहा कि हलाक होने वाले मुलजिम आसिफ कमांडो और जख्मी होने वाले मुलजिम बिलाल और बशीरा पर पहले भी मुतअद्दिद संगीन मुकदमात दर्ज हैं, जो कि आदि डकैत और चोर हैं, और इन लोगों ने इलाके में खौफ व हिरास फैलाया हुआ था। मुल्ज़िमान की गिरफ्तारी पर अहले इलाका ने खुशी का इजहार करते हुए ASP मीर रोहिल खान और दीगर अफसरान को मुबारकबाद दी और हार पहनाए। कैमरा टीम के साथ मोहम्मद यूसुफ चांडिया, मेट्रो वन न्यूज़, तोसा शरीफ। फैसलाबाद डिस्ट्रिक्ट बार के छोटे गेट पर आए हुए पेशी पर आने वाले मुल्जिम को कत्ल कर दिया गया। इस बारे में तफसीलात जानते हैं उसामा अकरम से। जी उसामा, बताइएगा।
पुरानी दुश्मनी के नतीजे में फायरिंग का वाकया पेश आया। पेशी पर आए मुलजिम को कत्ल कर दिया गया। डिस्ट्रिक्ट बार के छोटे गेट पर फायरिंग। बाई के कत्ल का बदला लेने के लिए एक मुलजिम ने फायरिंग कर दी। 2 हमलावर भी साथ थे। तीनों हमलावर मोटरसाइकिल पर सवार पार्किंग में पहुंचे। फायरिंग करने वाले मुलजिम को शहरियों ने मौका पर धर लिया और पुलिस के हवाले कर दिया। पकड़े जाने वाले मुलजिम शान ने 2 फायर किए। मुलजिम का बड़ा भाई और दोस्त मौका से फरार होने में कामयाब हो गए। शहरियों ने अपनी मदद आप के तहत फायरिंग से जख्मी होने वाले नुमान को रिक्शा में अलाइड हॉस्पिटल मुंतकिल किया। नुमान अस्पताल जाते हुए रास्ते में दम तोड़ गया। फायरिंग की इत्तला मिलते ही अलीड फोर्स, डोल्फिन एहलकार और पुलिस की बारी नफरी मौका पर पहुंच गई। पुलिस ने मुलजिम को थाना कोतवाली मुंतकिल कर दिया। पुलिस जाए वकूवा से शवाहिद इकट्ठे करने में मसरूफ। कैमरामैन काशी भट्टी के साथ उसामा अकरम, मेट्रो 1 न्यूज, फैसलाबाद। अब लिए चलेंगे आपको बोरेवाला, जहां पर म्यूनिसिपल कारपोरेशन की दुकानों की नीलामी के खिलाफ ताजिर बिरादरी सरापा एहतजाज बन गई है। आगाह करें आपको, म्यूनिसिपल कारपोरेशन की सरकारी दुकानों की नीलामी के खिलाफ अंजुमन ताजरान की जानिब से शटर डाउन हड़ताल की गई। ताजिरों की जानिब से म्यूनिसिपल कारपोरेशन के खिलाफ शदीद नारेबाजी की गई। ताजिरों का कहना था कि म्यूनिसिपल कारपोरेशन आज होने वाली दुकानों की नीलामी का नोटिस वापस ले, हम बाकायदगी से किराया अदा कर रहे हैं। इंतजामिया नीलामी आम करवाकर हमारा मौशी कत्ल करवाना चाहती है। लियाकतपुर में असिस्टेंट डायरेक्टर वाइल्ड लाइफ जीशान जतोई के हुक्म पर इंस्पेक्टर मोहसिन रियाज की कार्रवाई। 400 बटेर स्मगल करने की कोशिश को नाकाम बना दिया गया। मजीद तफसीलात जानते हैं इस रिपोर्ट में। पंजाब में बटेरे के शिकार पर मुकम्मल तौर पर पाबंदी आइन है। महकमा वाइल्ड लाइफ ने तरंडा बाईपास पर कार्रवाई करते हुए सादकाबाद से पिशावर जाने वाली बस को रोककर चेक किया। इस कार्रवाई में महकमा वाइल्ड लाइफ ने 400 बटेरे स्मगलिंग करने की कोशिश को मुकम्मल तौर पर नाकाम बना दिया। दौरान कार्रवाई 21 से ज्यादा बटेरों की पेटियां बरामद की गई। बटेरे रहीम यार खान से पिशावर स्मगलिंग किए जा रहे थे। ये पक्के बटेरे थे जो लड़ाई के लिए पिशावर स्मगलिंग किए जा रहे थे। बटेरों की कीमत 2 लाख के करीब बताई जा रही है। महकमे वाइल्ड लाइफ की इस कार्रवाई में इंस्पेक्टर मोहम्मद इरफान, रहीम नवाज व दीगर टीम शामिल थी। महकमे वाइल्ड लाइफ ने नाजायज शिकार किए हुए बटेरों को कब्जे में लेकर कार्रवाई शुरू कर दी। जी, कैमरामैन टीम के साथ मोहम्मद इरफान अजीज, तहसील रिपोर्टर, मेट्रो 1 न्यूज, लियाकतपुर। और यहाँ आपको बताएं, ऑल पाकिस्तान मैरिज हॉल एसोसिएशन की जानिब से ओकाड़ा के निजी शादी हॉल में प्रेस कॉन्फ्रेंस का इनेकाद किया गया। पाकिस्तान मैरिज हॉल एसोसिएशन ओकाड़ा के तहत एक हंगामी प्रेस कॉन्फ्रेंस का इनेकाद किया गया। इसमें सदर, जनरल सेक्रेटरी और तमाम जिलाई ओहदेदारान ने शिरकत की। जिलाई सदर सुहेल अदरीस ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि हम हर तरह से हुकूमत के साथ तावन करने के लिए तैयार हैं। हुकूमत के बनाए गए SOPs पर हम पहले से ही अमल दरामद कर रहे हैं और मजीद भी अमल करने के लिए तैयार हैं। इसके बावजूद अगर हुकूमत ने शादी हॉल्स को बंद करने की कोशिश की तो इस फैसले को हरगिज कबूल नहीं किया जाएगा। मैरिज हॉल एसोसिएशन के जिलाई ओहदेदारान ने बात करते हुए कहा कि हम पंजाब भर के मैरिज हॉल मालिकान व एसोसिएशन के साथ हैं। अगर हुकूमत ने हमारा मुआशी कत्ल बंद न किया तो हम एहतजाज करेंगे, फिर चाहे हम पर मुकदमात दर्ज हो या जो भी हो। एहतजाज का दायरा कार पूरे पंजाब तक बढ़ाना पड़ा तो इसके लिए भी तैयार हैं। इनका मजीद कहना था कि हुकूमत शादी हॉल इंडस्ट्रीज पर रहम करे और इस इंडस्ट्री से वाबस्ता लाखों अफराद को बेरोजगार होने से बचाए। हम पहले ही 8 महीने से हुकूमत की नाकस पॉलिसियों की वजह से बेरोजगार रह चुके हैं, जिससे लाखों लोगों का मुआशी कत्ल हो चुका है। कैमरा टीम के साथ फुरकान अहमद, मेट्रो 1 न्यूज, ओकाड़ा। बहावलनगर में जमीयत उलमा इस्लाम की जानिब से फ्रांस में गुस्ताखाना खाकों के हवाले से एक रैली निकाली गई। रफीक शाह चौक में एहतजाजी रैली निकाली गई। उलमा इकराम और तलबा ने भरपूर शिरकत की और फ्रांस के खिलाफ नारेबाजी की गई। मजीद तफसीलात बता रहे हैं जी गुलाम मुर्तजा जोया। जी, गुलाम है रसूल के गुलाम है, गुलामी रसूल में मौत भी कबूल है। जी बिल्कुल, इस वक्त बहावल नगर में जमीयतुल उलमा इस्लाम की जानिब से गुस्ताखाना खाकों की वजह से रैली निकाली गई है। मैं इस वक्त बहावल नगर के मेन चौक रफीक शाह चौक में मौजूद हूँ। मेरे साथ इस वक्त उलमा इकराम मौजूद है। मजीद हम इनसे जानते हैं ये इस बारे में क्या कहते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम।
ये आज कायदे मिल्लत इस्लामिया मौलाना फजल रहमान साहब दामत बरकातुहुल आलिया की अपील पर जिस तरह मुल्क भर में रैलियां निकल रही हैं, आज बावल नगर में भी अल्हम्दुलिल्लाह तहसील जमीयत उलमा इस्लाम बावल नगर की पुरजोर अपील पर अवामुन्नास माशाल्लाह शहर में आई है। हम हुकूमत वक्त से मुतालबा करते हैं कि फ्रांस के सफ़ीर जो है उसको मुल्क बदर किया जाए और अपना सफ़ीर जो है वहाँ से वापस बुलाया जाए। और तमाम ताजर बिरादरी से अपील करते हैं कि जितनी भी फ्रांस की प्रोडक्ट हैं उनका मुकम्मल तौर पर बाइकाट किया जाए। जी, इनका कहना था हम हुकूमत वक्त से पुरजोर अपील करते हैं कि फ्रांस का जो सफ़ीर है उनको फिल फौर वापस भेजा जाए। जी बहुत शुक्रिया। और यहाँ आपको बताएं, दुनियापुर में थाना सिटी पुलिस का मनशियात फरोशों के खिलाफ क्रैकडाउन, 3 मनशियात फरोशों को गिरफ्तार कर लिया। आगाह करें आपको, डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर लोधरा सैयद करार हुसैन की हिदायत पर थाना सिटी दुनियापुर पुलिस ने SHO फरहत अब्बास शाह की सरबराही में मनशियात फरोशों के खिलाफ क्रैकडाउन करते हुए 3 मनशियात फरोशों को गिरफ्तार कर लिया। मुल्जिमान के कब्जे से 395 ग्राम चर्स बरामद हुई। पुलिस ने मुल्जिमान के खिलाफ अलग अलग मुकदमात दर्ज करके मज़ीद तफ्तीश का आगाज कर दिया है। मुल्क और कौम की खिदमत करने वाले महकमा माल के 4 पटवारी अपने ओहदों से रिटायर हो गए। अंजुमन पटवारियान की जानिब से रिटायर हुए पटवारियों के एजाज में तहसील ऑफिस के कमेटी रूम में शानदार तकरीब का एहतमाम किया गया। अंजुमन पटवारियान की जानिब से रिटायर होने वाले पटवारियों के एजाज में तहसील ऑफिस के कमेटी रूम में शानदार तकरीब का इनकाद किया गया। तकरीब के मेहमान खसूसी एडिशनल डिप्टी कमिश्नर मोहम्मद इकराम मलिक, असिस्टेंट कमिश्नर बख्तियार इस्माइल थे, जबकि इस मौके पर तहसीलदार खानेवाल गौरनवाज जक्कू, नायब तहसीलदार मोहम्मद मंजूर और जिलाई सदर अंजुमन पटवारियान चौधरी नूर सुल्तान सऊद, तहसील सदर खानेवाल चौधरी मोहम्मद रियाज हुसैन सऊ और दीगर ओहदेदारान समेत जिला भर से अंजुमन पटवारियान के मेंबरान ने शिरकत की। एडिशनल डिप्टी कमिश्नर मोहम्मद इकराम मलिक ने कहा कि रिटायर होने वाले पटवारी मोहम्मद सदीक, अब्दुल शकूर, मोहम्मद नजीर और मलिक जमील, मुझे आप सब पर फख्र है कि आपने अपने मुल्क और कौम की खिदमत की और बाइज्जत तरीके से रिटायरमेंट ले ली है। आपकी खिदमत को हमेशा महकमा माल में सुनहरी हरूप में याद रखा जाएगा। महकमा माल के पटवारी 24 घंटे अपनी ड्यूटियां सर अंजाम देते हैं, मुझे उन पर फख्र है। पटवारी दिन रात मेहनत करते हैं और अपने महकमा माल के लिए कभी कभी मुझे बहुत ज्यादा तकलीफ महसूस होती है जब किसी पटवारी पर झूठे और बेबुनियाद इल्जामात लगाए जाते हैं। तकरीब के इख्तिताम पर रिटायर होने वाले पटवारियों को यादगार शील्ड्स और तोहफे ताइफ भी पेश किए गए। कैमरा टीम कैमरा नईम इकबाल राई, मेट्रो 1 न्यूज, खानेवाल। खबर शामिल करेंगे खानेवाल से। आपको बताएं, खानेवाल के इलाका पस्ती चंद शाह कब्रिस्तान में जगह जगह गंदगी के ढेर लग गए हैं। कब्रिस्तान की 4 दीवारी ना होने से कब्रिस्तान का तकद्दुस भी पामाल हो रहा है। जानते हैं अपने नुमाइंदे खालिद चौधरी से जो इस वक्त वहां पर मौजूद हैं। जी बताइएगा क्या तफसीलात हैं। बिल्कुल, मैं इस वक्त मौजूद हूँ खानेवाल के इलाका बस्ती चंशा के अंदर, जहाँ पर कई अरसे दराज से जो है कूड़ा क्रिकेट के ढेर लगे हुए हैं और अकब में जो है कब्रिस्तान है बस्ती चंशा का, तो उसके अंदर जो है कूड़ा क्रिकेट जो है वो डाला जाता है। बल्दिया की जानिब से अहले इलाका ने मुतअद्दिद बार जो है दरखास्तें दी हैं कि यहाँ पर जो है कूड़े डालने के लिए जो कंटेनर लगाए जाएँ, लेकिन वो भी नहीं लगाए जा रहे। इस वक्त हमारे साथ अहले इलाका के लोग मौजूद हैं, इसी वाले से मजीद इनसे बात करते हैं कि वो क्या कहते हैं। सर ये बताइएगा, कूड़ा क्रिकेट के ढेर लगाए गए हैं यहाँ पर, तो बल्दिया वाले इस हवाले से क्या कहते हैं, आपने कितनी बार कहा है उनको? सर मैंने मुतअद्दिद बार जो है बल्दिया में एप्लीकेशनें दी हैं, सब कुछ किया है, इफ्तिखार बंगर साहब को भी दरखास्तें दी हैं। अब यहाँ पर जो हमारा मुतलका जो MP है निशात अहमद खान डाहा साहब, ये हमारे घरों के आगे एक 4 फीट का ये नाला है, इसमें मैक्सिमम 3 बच्चे डूब के मर गए हैं। इन्होंने जब से ये MP तीसरी दफ़ा बन रहे हैं, इन्होंने ऊपर से फंड भी लिया है कि हम इसको कवर कराते हैं, सेवरी कराते हैं। सेवरी का सिस्टम बिल्कुल वैसे का वैसा पड़ा है। गंदगी आप लोगों के सामने है, ये सामने मेरे बस्ती चांचा का जो मेन कब्रिस्तान है, यहाँ पर जो है नशई, चरसी, जवारी, ये अमाज गाह बना हुआ है, कुत्ते हुए बेहताब है। अब यहाँ पर अगर बराबर तौर से जिस तरह इन्होंने वादे किए थे कि 4 दीवारी हो जाएगी, लाइटिंग हो जाएगी, जनाजा गाह बन जाएगा, पीछे हमारा जब ये रेलवे वाली दीवार नहीं थी उससे पहले यहाँ पर पार्क था, हमारी जितनी ये मरीजें थी बस्ती चांचा। क्या मुतालबा क्या है आपका जिले हुकूमत के इस हवाले से? मुतालबा यही है कि हमारे इस इलाके को साफ किया जाए। अब जिस तरह के आपको पता है कि बारिशें अगर होगी तो डेंगू मच्छर ने आ जाना है। तो जी आपने अहले इलाका की बात सुनी, उनका यही कहना है कि हमारा जिले हुकूमत डिप्टी कमिश्नर आगा ज़हीर अब्बास शिराजी और MP निशात अहमद खान डाहा से यही मुतालबा है कि हमारे जो बस्ती चंशा का कब्रिस्तान है
गज की 4 दीवारी करवाई जाए और कूड़ा करकट के लिए जो है यहाँ पर कंटेनर लगाए जाएं ताकि कब्रों की जो है वो बेहुरमती जो है वो ना हो। जी, खबरें और भी हैं लेकिन यहाँ पर लेंगे एक ब्रेक। हमारे साथ रहिए। नामे में खुशामदीद। और अब खबर शामिल करेंगे चूनिया से, जहां पर तहसील भर में ड्रग इंस्पेक्टर लईकुर रहमान खान की जानिब से अताई डॉक्टर्स और ड्रग माफिया के खिलाफ क्रैकडाउन जारी है। मुतादिद मेडिकल क्लिनिक्स को सील कर दिया गया है। मजीद अहवाल जानते हैं गफूर अंजुम से। में अतायत और बगैर लाइसेंस के मेडिसिन फरोख्त करने वालों के खिलाफ कार्रवाइयों का सिलसिला जारी है। इस वक्त ड्रग इंस्पेक्टर लईकुर रहमान एक निजी फार्मेसी पे मौजूद हैं। मजीद हम उनसे जानते हैं कि इनका क्या कहना है। जी अस्सलाम वालेकुम। देखिए, बीइंग अ ड्रग इंस्पेक्टर एंड बीइंग अ फार्मासिस्ट, हमारा प्राइम रोल ये है कि वी हैव टू इम्प्लीमेंट द ड्रग एक्ट 1976 और उसके अंडर जो रूल्स बने हुए हैं उसको अपनी ट्रू स्पिरिट के अंदर इम्प्लीमेंट करवाना। उसी के नतीजे में जो स्टोर्स बैठे हुए बगैर लाइसेंस के, हम उन पे क्रैकडाउन कर रहे हैं और ये इंश्योर कर रहे हैं कि सब लाइसेंस के साथ हों। उसके अलावा जो क्वैक्स वगैरह बैठे हुए हैं जो कि मेडिसिन का बेजा इस्तेमाल कर रहे हैं और गैर ज़रूरी इस्तेमाल कर रहे हैं, उसके खिलाफ भी हम क्रैकडाउन कर रहे हैं। आज हमारा एक और अहम मिशन ये है कि जो कोविड रिलेटेड आइटम्स जो गवर्नमेंट सप्लाई कर रही है, हम चाह रहे हैं कि वो डिस्काउंटेड रेट के ऊपर अवामुन नास को अवेलेबल हो। हमारी CDC की तरफ से भी इंस्ट्रक्शंस हैं और हम लोग कोशिश ये करें कि कुछ फार्मेसीज और पॉइंट ऑफ सेल्स को लूप में लिया जाए और वहाँ पे डिस्काउंटेड रेट पे मेडिसिन अवेलेबल हो। जैसे कि आप देख रहे हैं कि डिफरेंट सैनिटाइजर्स हैं, फेस मास्क हैं और ये इन्होंने लिख के लगाया हुआ है कि ये डिस्काउंटेड रेट पे अवेलेबल हैं और इसमें डिस्ट्रीब्यूटर्स हज़रात को भी हमने लूप में लिया है। जी बिल्कुल, आपने ड्रग इंस्पेक्टर लईकुर रहमान के तासरात जाने। इनका कहना था कि ड्रग माफिया कितना ही बासर क्यों ना हो, इनको गैर कानूनी काम करने की हरगिज़ इजाज़त नहीं दी जाएगी। जी बहुत शुक्रिया गफूर अंजुम। खबर शामिल करेंगे हारूनाबाद से, जहां पर फिजाई आलूदगी और स्मोक का बाइस बनने वाली कार्टन फैक्ट्रियां बंद ना होने की वजह से फिजा आलूदगी से भर गई है। अहले इलाका ने फैक्ट्रियों के खिलाफ कार्रवाई का मुतालबा कर दिया है। मज़ीद तफसीलात जानते हैं मोहम्मद जमील अंजुम की इस रिपोर्ट में। हारूनाबाद के इलाके भी इन दिनों स्मोक की लपेट में हैं। माहौलियाती आलूदगी की वजह से स्मोक में रोज बरोज इजाफा हो रहा है। इंतजामिया की गफलत और लापरवाही के बाद शहरी इलाकों और गिरदोनवा में चलने वाली फैक्ट्रियों में फिल्टर ना लगे होने की वजह से कार्टन फैक्ट्रियों में निकलने वाली रुई भी माहौलियाती आलूदगी का बायस बन रही है, जिसकी वजह से अलाकामकीन एलर्जी, सांस दमा और दीगर बीमारियों में मुब्तला हो रहे हैं। कद्दों के बाद बड़ी परेशानी, साडी फसलां, साडी जाना, साडा माल इस शायद बड़ा मुतासर है। DCO साहब अगे, AC साहब दे अगे इन्हां फैक्ट्रियां दा कोई सदेबाब कीता जाए ताकि कचरे की वजह तो साडे पिंड दे जिहड़े रहायशी ने मुतासर ना हो। हाई कोर्ट के हुक्म के बावजूद इंतजामिया माहौलियाती आलूदगी फैलाने वाली फैक्ट्रियों के खिलाफ कार्रवाई करने से गुरेजा है, जिस पर लोगों ने शदीद एहतजाज किया और आला हुक्काम से मुतालबा किया कि माहौलियाती आलूदगी का बायस बनने वाली कार्टन फैक्ट्रियों के खिलाफ हाई कोर्ट के हुक्म के मुताबिक कार्रवाई की जाए ताकि स्मोक और बीमारियों के बढ़ते हुए खतरात को रोका जा सके। राजा परवेज अशरफ कोरोना वायरस का शिकार हो गए। पंजाब भर में पोलियो मुहिम का आगाज हो गया और किस शहर में क्या हुआ जानते हैं इस रिपोर्ट में। साबिक वजीर आजम और MNA राजा परवेज अशरफ कोरोना वायरस में मुब्तला हो गए। राजा परवेज अशरफ का कोरोना टेस्ट मस्बत आ गया है। खुर्रम परवेज राजा के मुताबिक राजा परवेज अशरफ ने खुद को घर में करंटीना कर लिया है और तमाम सरगर्मियां मुअत्तल कर दी हैं। रवां साल की 5वीं इंसदादे पोलियो मुहिम की तैयारियां शुरू। डिप्टी कमिश्नर सैफ अनवर जब्बा, इंसदादे पोलियो मुहिम 30 नवंबर से 4 दिसंबर होगी। इंसदादे पोलियो मुहिम के दौरान 4,41,000 से जायद बच्चों को कतरे पिलाने का हदफ मुकर्रर किया गया है। DSP सर्कल जामपुर सनाउल्लाह मस्तोई ने अरकान प्रेस क्लब से क्राइम के हवाले से मुशावरती मीटिंग की, जिसमें क्राइम के हवाले से अमूर जेर बहस लाए गए। सर्कल ऑफिस में DSP जामपुर
सनाउल्लाह मस्तोई ने सहाफियों से मीटिंग करते हुए कहा कि जराइम के खात्मे के लिए अकेली पुलिस कुछ नहीं कर सकती, सहाफियों और सिविल सोसाइटी के ताउन से जराइम खत्म किया जा सकता है। उनका कहना था कि पुलिस और सहाफियों का चोली दामन का साथ है। अब पुलिस कल्चर में बहुत सी तब्दीलियां आ गई हैं। थानों से टॉर्चर सेल खत्म कर दिया गया है और पुलिस को भी डिजिटल टेक्नोलॉजी से मुंसलिक कर दिया गया है, जिससे बेहतरी आ रही है। उनका कहना था कि जराइम पेशा अफराद से निपटने के लिए हम दिन रात कोशां हैं। तहसील आरिफ वाला इलाका थाना सदर की हदूद में गांव चक नंबर 151 ईबी में भैंसों को किसी ने जहर डाल दी। जहर खुरानी से 4 अदद लाखों रुपए की कीमती भैंसें हलाक हो गईं। 2 अदद भैंसों का इलाज जारी है। गुजरात पुलिस ने सराय आलमगीर में होने वाले अंधे कत्ल की वारदात ट्रेस कर ली। कातिल गिरफ्तार, मुद्दई ही कातिल निकला। सिफाक बेटे ने सगे बाप को सर में फायर मारकर मौत के घाट उतार दिया। खानेवाल के इलाका बस्ती चंद शाह कब्रिस्तान में जगह जगह गंदगी ढेर लग गए या इंतजामिया लस्सी पीकर सो गई। कब्रिस्तान की 4 दीवारी न होने से कब्रिस्तान का तकद्दुस पामाल होने लगा। दुआ और फातिहा के लिए आने वालों को बदबू और ताफुन की वजह से परेशानी का सामना। अहले इलाका बल्दिया के खिलाफ सरापा एहतजाज बन गए। और बुरे वाला डीएसपी शमसुद्दीन ने कहा है कि सर्कल के थानों में मेरिट पर इंसाफ की फराहमी अवलीन तरजीह है। करप्शन के बारे में मुझे आगाह करें, इस पर फौरी एक्शन लिया जाएगा। थाना खानगढ़ पुलिस के तशद्दुद का शिकार खानदान को तशद्दुद की वीडियो सामने आने के बावजूद इंसाफ न मिल सका। इंसाफ के असूल के लिए डीपीओ मुजफ्फरगढ़ को दी जाने वाली दरख्वास्तें रद्दी की टोकरी की जिन्नत बन गईं। मुतासरा खानदान का इंसाफ के असूल के लिए थाना खानगढ़ पुलिस के खिलाफ एहतजाजी मुजाहरा। वज़ीर आला पंजाब से इंसाफ के असूल का मुतालबा। साबिक विफाकी वजीर गुलाम दस्तगीर खान समेत 5 अफराद के खिलाफ एंटी करप्शन में मुकदमा दर्ज। सरकारी जमीन जिस पर दस्तगीर ब्रादर्स ने गैर कानूनी कब्जा करके साल पेट्रोल पंप चलाया, इसकी मौजूदा मालियत तकरीबन 1 अरब रुपया है। पाक फौज मुल्क का कीमती असासा है और दुनिया भर में कीमती असासों की जान से बढ़कर हिफाजत की जाती है। मुख्तलिफ मकातबे फिक्र से ताल्लुक रखने वाले उलमा इकराम का जुम्मा के खिताबात में इजहार ख्याल। 1 साल कबल कमसिन नन्ही 11 माह की जुनैरा फातिमा से ज्यादती का मुल्जिम कैफरे किरदार को पहुंच गया। अदालत ने मुल्जिम को सजाए मौत और 3 लाख रुपए जुर्माने का हुक्म सुना दिया। और चिश्तियां का 10 साला सादुर रहमान, जिसने कोरोना के बाइस लगने वाले लॉकडाउन में सरगर्मी अपनाते हुए कंप्यूटर टाइपिंग में आलमी रिकॉर्ड तोड़ डाला। अल्फाज इसकी उंगलियों से दौड़ते नजर आते हैं। साहिवाल मिडहाली रोड पर चौधरी ट्रांसपोर्ट की बस ने 2 अफराद को कुचल डाला। मुश्तल शहरियों ने बस को आग लगा दी। दोनों अफराद के जाँ बहक होने की इतलात हैं। 15 नवंबर को तहरीके लब्बैक के रावलपिंडी में होने वाले एहतजाज के हवाले से पुलिस इन एक्शन। तहरीके लब्बैक के जिलाई रहनुमा हाजी मोहम्मद रमजान, मुकामी रहनुमा अजमल कुरैशी और नसीब भट्ट को गिरफ्तार कर लिया गया। गिरफ्तारी गुज़श्ता रात अमल में लाई गई। सर्कल गुजर खान पुलिस आला हुकाम के अहकामात पर तहरीके लब्बैक के दीगर सरगर्म ओहदेदारों और कारकुनों को हिरासत में लेने के लिए मुतहर्रिक छापे जारी। चिन्योट मुजरिमान इश्तिहारियों के खिलाफ पुलिस का घेरा तंग। आईजी पंजाब इनाम गनी की हिदायत पर इश्तिहारियों के शनाख्ती कार्ड, बैंक अकाउंट और सिमें ब्लॉक कराने का अमल जारी। और महकमा ज़राअत खानेवाल की टीम ने पुल 114 पर पेस्टिसाइड दुकानों पर अद्वियात का मुआयना किया। जायदुल मयाद ज़राई अद्वियात फरोख्त करने पर दुकानदारों पर मुकदमात दर्ज कर लिए। जायदुल मयाद ज़राई अद्वियात कब्जा में ले ली। बलूचिस्तान और सिंध से शोरकोट 502 मुल्का में उर्स साबरिया की शिरकत के लिए पैदल सफर करके अकीदतमंदों का काफिला शोरकोट सिटी पहुंच गया। बलूचिस्तान और सिंध से आने वाले जायरीन का पैदल काफिला शोरकोट पहुंच गया, जहां इनका इस्तकबाल दरगाह साबरिया के सजादा नशीन सैयद जमील हैदर साबरी ने किया। भावलनगर थाना सदर पुलिस की मंशियात फरोशों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई। आदि मंशियात फरोश खतून समेत 3 मुल्जिमान गिरफ्तार कर लिए। 4 किलो से जायद चर्स बरामद हुई। तफसीलात के मुताबिक डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर भावलनगर कदूस बेग की हिदायत पर SHO थाना सदर भावलनगर सिजाद अहमद की सरबराही में फराज अहमद ASI ने मुखबर की इतला पर पुलिस टीम के हमरा समन सिंह में कामयाब कार्रवाई करते हुए आदि मंशियात फरोश खतून शकीला बीबी को गिरफ्तार कर लिया, जिसके कब्जा
से 1378 ग्राम चरस बरामद हुई। इसी तरह दूसरी कार्रवाई में मुलजिम मोहम्मद खालिद को गिरफ्तार किया, जिसके कब्जा से 1320 ग्राम बरामद हुई, जबकि सब इंस्पेक्टर शहजाद इशफाक ने पुलिस टीम के हमरा कार्रवाई करते हुए मुलजिम मोहम्मद इमरान को गिरफ्तार कर लिया, जिसके कब्जा से 1340 ग्राम चरस बरामद हुई। तीनों मुलजिमान के खिलाफ मंशियात एक्ट के तहत मुकदमात दर्ज करके तफ्तीश का अमल जारी है। और बिहाड़ी में दौलत की हवस में भतीजे ने साथियों के हमरा अपने बेऔलाद 86 साल बुजुर्ग चचा रफी मोहम्मद को अगवा करके इसके अकाउंट से 73 लाख रुपए और करोड़ों रुपए मालियत प्रॉपर्टी जबरदस्ती अपने नाम करवा ली। पुलिस थाना सिटी ने मुकदमा तो दर्ज कर लिया, मगर गुज़श्ता 15 रोज से मुलजिमान दिन दनाते फिर रहे हैं। मुतासरा शख्स की इंसाफ के लिए आला हुकाम से फौरी नोटिस का मुतालबा। इकबाल टाउन के रिहायशी 86 साल बुजुर्ग रफी मोहम्मद ने अपने लेपालिक बेटे मोहम्मद रिजवान के हमरा रोते हुए बताया कि इसके हकीकी भतीजे मोहम्मद अनवर और इसके साथी राव अफजल काला ने नामालूम साथियों के हमरा अगवा करके नामालूम मुकाम पर मुंतकिल कर दिया, जहां मुलजिमान असलहा के जोर पर मुझे मेरे गोद लिए बेटे रिजवान को कत्ल करने की धमकियां देते रहे। मुलजिमान मुझे जान से मारने की धमकी देकर बैंक ले गए और मेरे अकाउंट से 73 लाख रुपए अपने अकाउंट में मुंतकिल करा लिए। ननकाना साहब ज़िलाई महकमा पुलिस ननकाना के ज़ेरे तमाम हफ्ता शान रहमत लिल आलमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सिलसिला में पुरवकार महफिल मिलाद का इनेकाद किया गया। महफिल मिलाद में मरूफ उलमा इकराम, नातख्वां हजरात समेत मुख्तलिफ शोबाए जिंदगी से ताल्लुक रखने वाले अफराद ने कसीर तादाद में शिरकत की। मुरीद के जीटी रोड पक्के स्टॉप पर CNG पर बैठे 3 अफराद पर अंधाधुंध फायरिंग से शफीक जाहिद, महमूद मियां दाऊद शदीद जख्मी। जख्मियों को THQ अस्पताल से लाहौर मियां अस्पताल रेफर कर दिया गया है। पुलिस मुरीद के दरीना दुश्मनी की बना पर हमला किया गया। मुलजिमान रहमानुल्लाह अकबर और साथी को जल्द गिरफ्तार कर लिया जाएगा। शहरनामे से फिल वक्त इतना ही। मजीद खबरों से बाखबर रहने के लिए देखते रहिए मेट्रो 1 न्यूज।